What is wave nodes? Actually, wave nodes is a kind of a tool, analytical tool. It's not a buy sell indicator. It's an analytical tool that helps you visualize the market. And what is the need for getting such type of tool? See, the market, if you go by one or two techniques or something like that, the problem with those techniques are those will work sometime and those won't work sometime. The idea is maximizing कि कहाँ पे आपको better information मिल सकती है, and that should be precise and correct. Accuracy is important. It's also important that what is going to be the next step. What is going to be the next step? मतलब फ्यूचर में क्या ये करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी पता लगाना जरूरी होता है. That's the reason जो indicators होते हैं, most of the time you will see it will work wonder for 1 or 2 days or 1 or 2 trades, and after that trade after trade after trade those stop working, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिकेटर का पर्पस था वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता, मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता, या फिर वॉल्यूम्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता. लेकिन जहां पे हम बात करते हैं वेव नोड्स की, वेव नोड हेल्प यू विजुअलाइज द मार्केट एंड प्लान योर ट्रेड्स, not just in the current state but also for the future, that what is going to be my trading strategy for next 1 hour, for following hours, for next few days, and so on. So let us try to understand what are the components of wave nodes. The most important and the basic component of wave node is the waves itself, which help let you know where the market is flowing. Flowing matlab market ja kis side pe rahi hai. So let us say, let me switch to 1 hour time frame, turn off everything else, and see what do we see when we talk about the wave nodes. See, these are the waves. Okay, this yellow color cloud, this blue color cloud, what you see, these are the waves. Actually waves का मतलब क्या होता है? waves का मतलब होता है मार्केट जब भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है या फिर डायरेक्शन में नहीं भी मूव कर रही होती है, तो वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है. इट ऑलवेज फ्लक्चुएट्स अराउंड इट. करेक्ट. द प्रॉब्लम इज कितना वो फार जाएगी, कितना वो नीचे तक आएगी, या इसका डायरेक्शन या इसका एंगल कितने टाइम चेंज हो रहा है, कितने डिग्री पे इस टाइम चल रहा है, ये सब किसी रिटेल ट्रेडर के लिए पता लगाना आसान नहीं होता है, बिकॉज देयर आर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन सच टाइप ऑफ वेव कैलकुलेशन, की जहां पे पता लगे कि वेव मूव किस साइड पे कर रही है, वेदर इट इज मूविंग इन अप डायरेक्शन, वेदर इट्स स्टेबलाइज्ड एंड नॉट मूविंग हियर एंड देयर, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, या फिर इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक सिंपल इंफॉर्मेशन किसी भी प्रेजेंट टाइम पे मिल सकती है वो होती है कि ये डायरेक्शन अप साइड का है या डाउन साइड का है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये आगे आके क्या करने वाला है या फ्यूचर इसका किस टाइप से प्रोजेक्टेड किया जा सकता है. सो वेव्स आपको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में है, एक डायरेक्शनल फेज में, ट्रेंड नहीं बोलेंगे इसे, एक डायरेक्शनल फेज में है या फिर नॉन डायरेक्शनल या फिर कंसोलिडेशन फेज में है. जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है इसको रेफर किया जाता है बैलेंस स्टेट. It is the balance state of the market, and when I say market I am referring to all tradable instrument including MCX commodity futures या फिर stocks या फिर futures, everything which is tradable is being referred to here as market. Collectively we are calling it as market. So you can trade in Reliance, you can trade in ITC, you can trade in Kotak Bank, you can trade in Nifty, Bank Nifty, zinc, crude oil, gold, Bitcoin and other things. Everything collectively I'm referring to here as market. So when the market is in consolidation phase, it becomes a balanced state of the market. और market में balance state का मतलब होता है that bulls and bears both are in same power, both have the same power and they both have इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन्ड. मतलब वो इसको ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे आने दे रहे हैं. तो ऊपर जाती है सेलिंग होती है, बियर्स पावर में आ जाते हैं, नीचे आती है बुल्स पावर में आ जाते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड एज बैलेंस स्टेट. जैसे सीसॉ होता है तो इट्स अ बैलेंस स्टेट, दोनों साइड पे वेट्स इक्वल है. लेकिन एज soon as they start moving up या अप साइड पे या डाउन साइड पे जाना स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस स्टेट ऑफ द मार्केट. मतलब नाउ समवन आउट ऑफ बुल्स या बियर्स में से कोई तो इन पे हावी हो गया है और उसने कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया है मार्केट का, एंड नाउ दे आर
changing the direction of the market. Market will change its direction now. अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है मार्केट, इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस स्टेट बुलिश मूव, एंड अगर नीचे आ रही होती है इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस स्टेट बेरिश मूव। इम्बैलेंस स्टेट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बियर्स इक्वल पावर में नहीं रह जाते। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो बियर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बुल्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्कुल बेसिक टर्म में मैंने ये चीज आपको बताई है। और जो वेव्स होते हैं इसी से पता चलता है कि मार्केट किस टाइम पे और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो लेट अस से here we are trying to see when the market is in balance state. Market balance state में कब थी? If you notice this pattern, the wave pattern that you see here, it's completely in the balance state as of now. पता कैसे चलता है कि बैलेंस्ड है या नहीं? जब भी क्लाउड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, येलो क्लाउड्स जिसको हम बोलते हैं बुलिश क्लाउड्स, एंड ब्लू कलर क्लाउड्स जिनको हम बोलते हैं बेरिश क्लाउड्स। जब भी ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं उस टाइम पे एक ये बैलेंस स्टेट का सिनेरियो बनता है। और जब बैलेंस स्टेट होती है वी वेट फॉर द मार्केट टू गेट इनटू इम्बैलेंस स्टेट। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं फॉर एग्जांपल, यू डू नॉट वांट मार्केट टू ट्रेंड, देन दिस इज योर बेस्ट एरिया। एंड जब भी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ती है या डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, इम्बैलेंस स्टेट में करती है, तो उस टाइम पे क्लाउड्स एक दूसरे के लेवल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। Here you see that market was in balance state. It came from downward direction. It reached this point, this particular point. इस पॉइंट तक आने के बाद मार्केट एक बैलेंस स्टेट में एंटर कर गई। नाउ पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल नोड्स पैरेलल होंगे। जो इनके बीच में एक लाइन नजर आती है, those are referred to as wave node. The node of the wave, it is the mean of the cloud, complete cloud, and cloud refers to the volatility buffer around this mean जिसमें मार्केट घूम सकती है without impacting the state of it, the balance state of it। मतलब एक मीन है जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आएगी और यहाँ पे बियर्स कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है। इसके अराउंड जो भी उसकी करंट वॉलेटिलिटी है मार्केट के, उसके हिसाब से एक क्लाउड ड्रॉन रहता है जिससे पता चलता है मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में घूम सकती है विदाउट इंपैक्टिंग द बैलेंस स्टेट ऑफ इट। ओके, सो हियर when the clouds are overlapping, it is not necessarily that nodes are overlapping. It means that nodes थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, but cloud का एक overlap दिखेगा ही दिखेगा। Okay, so in this case when the market is in balance state and any breakout happens, चाहे upside का चाहे downside का, we refer to it as imbalance state। मार्केट imbalance state में एंटर करती है ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे। ये होता है तरीका वेव नोड को देखने का। अब अगर आप प्राइस को इस पे प्लॉट करके देखेंगे और क्लाउड की फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आप फेक ब्रेकआउट से भी बचते हैं। ऐसे केस में फेक ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने कभी डाउनवर्ड मूव दिया है बट इट हैज स्टिल स्टार्टेड फॉर्मिंग द पैरेलल क्लाउड्स, या फिर ये ऊपर की तरफ भी क्लाउड अभी चल रहा है, ब्लू कलर का येलो क्लाउड भी ऊपर की तरफ चल रहा है, बट दीज क्लाउड्स हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग द पैरेलल एरिया। पैरेलल फॉर्मेशन इनमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो क्लाउड्स का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि हम पता लगा सके कि कब मार्केट बैलेंस स्टेट में है और कब मार्केट इम्बैलेंस स्टेट में एंटर कर रही है। इसके अलावा क्लाउड्स का एक यूज और भी होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि आने वाले मूव्स क्या हो सकते हैं प्राइस एक्शन के टर्म्स में, कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या ये कंसोलिडेशन में एंटर कर रहा है, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।